Welcome back. We'll be talking to Australian Consul Andrew Collister, who's joining us from Bengaluru. Andrew, many congratulations. Well, at the start, even you said that India are the favourites. How happy are you with this result? Tell us. Hi, Rika. Thanks for having me back on. I'm surprised, but yes, I'm thrilled. I think it's an amazing victory. India have been an amazing team all tournament, and very much credit to them for that. But I have to admit, no one really expected this from the Australian side, and as an individual achievement, it's massive. It's really quite a thing, quite an achievement. Andrew, Pat Cummins, we have been talking all along that he seems like a reluctant captain. From a reluctant captain to a World Cup winner, how big has his curve been and how incredible has his journey been over the last few months? Yeah, he's really grown. I think it was quite unusually open of him before the tournament. I think he admitted that, he was still getting to grips with one-day international cricket, which perhaps is not the most, the inspiring and confidence phrase he could have used. But as he's really grown throughout the tournament, some of his, and today, I think he really surprised us all when he elected to bowl. But he backed his judgment in, he backed his bowlers, they bowled well, and then, of course, they chased down the total much more comfortably, I think, than any of us could have assumed. So I think it's a real feather in his cap. This year he's retained the Ashes in England. Of course, the Test series in India did not go as planned, but I think from this he can take away a real achievement. Andrew, this Australian team is called Un-Australian. After this win, will they feature in the League of Legends? I think they have to. I think, as I think this earlier in the afternoon, that I don't think they can quite compare to the team of 20 years ago for sheer consistency. But in terms of winning a one-day international World Cup away in India, against this Indian team, I think can really go down as the single greatest achievement in Australian one-day international history. Certainly in my lifetime, and I've been watching cricket for nearly 30 years, and I've seen some great things, admittedly, but this, I think it's the biggest surprise we've had. And I think it's a real credit to this team. It's a shame, perhaps, that many of these players, they're quite old. They won't go on for too many more years. But it's it's real vindication of the cricket that they've played over quite a long time now. Andrew, I just want to ask you one question. Has the party begun in back home in Australia? Because it's a late night there. So will people wake up to this victory, or there are already crazy celebrations back home? It's definitely one for the true believers. I've had a few messages from people who have gone to sleep, woken up again, and some who have lasted the whole journey. Australians, as a rule, whether we're watching cricket in India or, say, sport in Europe, it's pretty brutal because you have to have some very early mornings. And is it 3 a.m. in Sydney right now? It's perhaps 3 or 3:30 a.m. in Sydney. And it's very early morning in Sydney. So I think there'll be people who have lasted all night. Some will have gone to bed and woken up again. I've definitely had some messages already from friends and family who've done both or either. And I think there'll be a lot of people waking up as well in the morning, genuinely shocked that we were able to do this. I think there was a bit. You have no idea how much we would love to switch places with you. We would have gotten up and the party would have gone through the night if this would have been the other way around. But I've got a party of very quiet friends next door. They're being very gracious while I appear on TV. But it's been, I think, but cricket always brings Australia and Indians together. And even in a night like this, we're able to share in it so much. And I've been on Rika's show before when India have won Test matches in Australia, one Test series in Australia, and I know that relationship goes both ways, and there's a lot of respect there, which I think makes for a really good relationship. Thank you very much for joining us, and we'll let you go and enjoy. I can already see you in celebratory clothes, Andrew. Have a good time and cherish this Australia win. Thank you all. Thank you. रीका, जैसे एंड्रू हमारे लिए तो गुरुजन राजी आप तो तैयार थे पार्टी के लिए. हमारे अगर ये मैच जीत जाते तो पूरी रात पार्टी चलनी थी. बिल्कुल सही कह रहे हैं. वो तभी कहते हैं कि क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं का खेल है, क्योंकि जैसे लोग बात कर रहे थे कि इंडिया अगर टॉस जीतेगी तो इंडिया पहले बैटिंग करेगी, बैटिंग से एडवांटेज हो जाएगी, लेकिन बहुत ही ये मास्टर स्ट्रोक है ऑस्ट्रेलिया का कि उन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग की. आई थिंक
उनके स्पोर्ट्स स्टाफ उन्होंने काफ़ी प्लान किया होगा पहले कि अगर टॉस जीतेंगे और हमें शायद थोड़ा सा ड्राई विकेट मिलने वाला है, तो उन्होंने पहले जब बॉलिंग की उसके बाद जो उन्होंने फास्ट बॉलर्स ने भी जो बॉल डाला, हाँ फास्ट बॉलर ने जो बॉल डाला, और मुझे लगता है कि ये ट्रेविस हेड का मैच है। जैसे उन्होंने जो रोहित जैसी बैटिंग कर रहे थे 47 बनाया उन्होंने 32 बॉलों में, और जो कैच पकड़ा आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही डिफिकल्ट कैच था वो, और उन्होंने 2 ओवर डाले, 2 ओवर में 4 रन दिए सिर्फ। फिर बैटिंग जो की उनके सामने ही 47 पे 3 प्लेयर आउट हुए, और वो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट से मारी उन्होंने। और जब फास्ट बॉलर ने अपना काम कर दिया था, 3 विकेट आगे थे 47 रन पे, उसके बाद मुझे लग रहा है स्पिनर्स ने थोड़ा सा मतलब और बेटर कर सकते थे, लेकिन ट्रेविस हेड ने उनको सेट ही नहीं होने दिया। आज अपना बॉलर का दिन नहीं था। नहीं, बॉलर्स का दिन नहीं था, अपना दिन था ही नहीं। आज इंडिया का ही दिन नहीं था। सलाम बालक ट्रस्ट के बच्चे आए हुए सुबह से बैठे हैं, जरा इनसे बात करते हैं, थोड़े मायूस से लग रहे हैं। चलो बच्चों जरा बताइए एक्सपीरियंस। येलो टी शर्ट पहने हो, चेंज तो नहीं कर रहे ऑस्ट्रेलिया? नहीं मुझे किसी ने मैसेज किया कि आपने पहले से ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर को बिठा रखा है। नहीं, एक्चुअली स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप के कहते तो लॉयन टीम। माइक पे बात करिए, माइक पे, बगैर माइक की आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अच्छा था हमारा अनुभव, और हमको अब अच्छा भी लगा यहाँ पर आने के बाद। हमने जैसे मैच देखा, दोनों ही टीम ने मतलब अच्छा खेला, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने थोड़ा कम खेला, उसने भी अपना फुल दिया जितना वो दे सकते थे, और ऑस्ट्रेलिया ने भी खेला। लेकिन कहते हैं कि लक का बात होता है, तो आज इंडिया का लक नहीं था। वहाँ पे कोच साहब आपके बगल में वैशाली, आप बताइए कहाँ पे चूक हो गई? पहले तो स्टार्टिंग में बैट्समैन जैसे कि स्टार्टिंग मिली थी, उसके बाद अगर 1-2 विकेट गिर गया तो उसके बाद भी हमें पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए थी। वो उतना बिल्ड हो नहीं पाया, और पिच पे हमारी टीम के जो बैट्समैन हैं वो टिक नहीं पाए उतनी देर तक, वो वहाँ पे हम लैग करे। उसके बाद जब फील्डिंग में 10 ओवर्स जो ऑस्ट्रेलिया टीम ने बैटिंग करी है, और हमने जो रन्स दिए हैं, फोर्स जो गए हैं, वो हमारे लिए बहुत चुभ है। इनफैक्ट आप भी शायद इस बात को मानेंगे वैशाली कि ऑस्ट्रेलियन टीम की जो फील्डिंग रही, उन्होंने 30-40 रन बचाए, हम पे प्रेशर ला दिया, हम लोग खेल ही नहीं पाए खुल के, ऊपर से विकेट भी जाते गए। जी बिल्कुल, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने जैसे फील्डिंग की थी, और हमने जिस तरह से हमारे जो बैट्समैन थे वो स्ट्रोक कर रहे थे कि चेज भी कर रहे थे, वो सिर्फ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंडिया टीम पे इतना प्रेशर बना दिया कि इंडिया टीम को सिर्फ और सिर्फ रन लेकर ही आगे, आपका रन टारगेट जो उनको आगे देना था वो सिर्फ आप रन लेके ही कर सकते हैं। आप 4 अगर आपके अंदर, उन्होंने कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज में कि अगर दम है तो मार के दिखाओ, तो उन्होंने ये ओपनली नहीं बोला बट इनडायरेक्टली डिसाइड कि आप 4 लगा के दिखाइए, हम यहाँ पे खड़े हैं। विजय सर, आज फील्डिंग भी कंट्रास्ट फील्डिंग रही, जो फील्डिंग, जो कैच, जो रन बचाए ऑस्ट्रेलिया ने आज मैदान में, इनक्रेडिबल। ऑस्ट्रेलिया का दिन था सर। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का दिन था, क्योंकि अगर आप रिजल्ट की तरफ नज़र डालेंगे तो बिल्कुल यही देखने को मिलता है। पर बाबा, हम प्री मैच में ये कह रहे थे अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो ऐसा नहीं होगा कि आप कोई ये कह रहा होगा कि ये अपसेट हो गई या सरप्राइज हो गए, ऐसा नहीं है। शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट इस बात की होगी कि भारत जिस तरीके की क्रिकेट खेलती हुई आई थी वो वर्ल्ड कप जीती नहीं। उसके अलावा ये नहीं था कि किसी ऐसी टीम से आपका मुकाबला था कि आप ये कहेंगे कि यार इनसे तो हम हार नहीं सकते थे, तो वो अपोजिशन था आपके पास फील्डिंग का। ही इज अ वेरी गुड डिप्लोमेट, यू नो, ही सेड दैट और ये भी बोला था उन्होंने कि मुझे अभी 3 साल और निकालने हैं बैंगलोर में। सभा आप क्या कहेंगे जो बात विजय कर रहे हैं? हाँ, देखिए, हम लोगों को तो यही उम्मीद थी कि भारत जिस तरह से परफॉर्म करता आ रहा है, भारत को ये मैच जीत लेना चाहिए था, और जिस तरह से गेम पलटा है उससे साफ जाहिर है कि बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को मालूम है किस तरह की उनको तैयारी करनी है, किस तरह से उनको प्लान्स अपने एग्जीक्यूट करने हैं। बार बार प्लान्स के बारे में हम लोग बात करते आ रहे हैं कि ऐसी टीम जो ना ही केवल अपने नर्व्स को कंट्रोल करेगी पर अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगी, वही टीम जीतेगी। तो आज जो जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उनके एग्जीक्यूशन पर हम लोगों को ज़्यादा जोर देना चाहिए। जिस तरह की गेंदबाजी में उन्होंने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए, हर एक बैटर के सामने उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे उस हिसाब से गेंदबाजी हुई, और इसी वजह से भारत को कोई बड़ा स्कोर उन्होंने करने दिया नहीं। भारत की तरफ से देखिए चूक तो ज़रूर हुई है, जिस तरह की हमें पारी खेलनी चाहिए थी, जितना बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहिए तो वो हम लोग कर नहीं पाए। अब मैं विजय से ही बात कर रहा था कि वो जो साझेदारी हो रही थी विराट और के राहुल के बीच में, क्या वो 10 ओवर के बाद साझेदारी में और ज़्यादा
स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत थी कि नहीं। उनके जो दो नॉन रेगुलर बॉलर्स हैं, ट्रैविस हेड और मिच मार्श, दोनों ने 2-2 ओवर डाले, एक ने 5 रन दिया, एक ने 4 रन दिया सिर्फ, तो क्या वहाँ पर हमसे भूल हो गई? पर ये सब हाइंडसाइट में हम लोग बात कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी मुझे लगता है कि भारत को ये उम्मीद नहीं थी कि विकेट इस तरह से खेलेगा सेकेंड हाफ में, और जब ब्रेक हुआ तब ऐसा लग रहा था हम सब लोगों के कि 240 241 जिस तरह का विकेट है वो हो सकता है कि डिफेंड किया जा सकता है, पर ऐसा हो नहीं पाया। पीछे एक बच्चा था, वो कुलदीप का बहुत बड़ा फैन है। माइक लीजिए जरा, माइक विजय। हाँ, आज आप बताइए, आज आपका अनुभव, कुलदीप यादव पर बहुत जिम्मेवारी थी, बताइए। जी, जैसा कि देखिए हमारे पेसर्स ने तो स्टार्टिंग में अपना काम कर दिया था, बट वो जो कहते हैं कि मिडिल फेज में हम लोगों को विकेट्स निकालने पड़ते हैं, तो जडेजा और कुलदीप को उस तरह की बॉलिंग करनी चाहिए थी, विकेट टेकिंग बॉलिंग करनी चाहिए थी। जो मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे आप कैसे भी बॉलिंग करें, चाहे आप थोड़े से रन भले ही दे दें, पर आपको वो 2-3 विकेट वहाँ पे निकालने ज़रूरी थे। अगर वहाँ पे वो जो एक पार्टनरशिप लगी उन दोनों के बीच में, अगर वो सस्ते में निपट जाती तो फिर आने वाले बैट्समैन पे इतना इजी नहीं होता ऐसे टर्नर पे रन बनाना। बाबा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैच खत्म हुआ आधे घंटे से ऊपर हो गया, अब तक ट्रॉफी क्यों नहीं दी गई है? ट्रॉफी दी जाएगी अभी, मतलब टाइम क्यों लग रहा है? अदरवाइज तो खत्म है। We'll have to tell our viewers beautiful pictures being played out of Sachin Tendulkar talking to the Indian cricket team. He came out, he hugged each one of them, including his teammate Rahul Dravid. He was talking to Rohit Sharma, to Ravindra Jadeja, Virat, Kohli, each one of them. He was having a one-on-one conversation. Well, they're all getting ready for the presentation. Now it takes a little bit of time for the presentation party. धोनी भी नहीं दिखे, कपिल देव भी नहीं दिखे, क्या है रिका? वहाँ पे सबको आना था कि नहीं आना था? नहीं, ये जो captains का party था, this was during the break. Probably the broadcasters have not shown us. But क्योंकि आपने कपिल देव के बारे में बात की, so we got to know that Kapil Dev has not been invited. We really don't know why he hasn't been invited, whether it was a mistake, because it was meant to have been a melee of all the World Cup winning captains. Of course, you wouldn't have seen Imran Khan, but Kapil Dev definitely deserved to be there. But why he wasn't invited, we don't know. Kapil Dev right now must be thinking, ठीक है, घर में ही ठीक है, आज बड़ी मायूसी होती है स्टेडियम में। No, he's actually sitting as an expert in one of the TV studios. तो इसका मतलब इतना करार था कि वो जा नहीं सकते थे क्या? खैर उस पे अलग, अब उनका वो उनका बिजनेस है। बाबा यहाँ पर भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं? वो उसका जवाब तो वही दे सकता है। लेकिन बहरहाल मैच तो हार गए, ये तो सच्चाई है और ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी। मैच नहीं हारे हैं, वर्ल्ड कप हार गए। वर्ल्ड कप हारे नहीं, वर्ल्ड कप हारे। मैच 10 मैच अच्छा खेले ना आप, 10 मैच बीता, 1.5 महीना अच्छा बीता।